Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. So this case scenario is based on financial instruments under Ind AS 32, 107 and 109, and our major topic is impairment of financial asset and to create provision for expected credit loss. So let us see data given in this scenario. So we are given entities are required to create a provision for impairment of financial asset under Ind AS 109. So we have to determine the amount of expected credit loss for different entities for current financial year. So number one is given that so entity A originates a single 10-year amortizing loan for rupees 10 lakhs, taking into consideration the credit risk of the borrower and the economic outlook for the next 12 months. Entity A estimates that the loan at initial recognition has a probability of default 0.25% over the next 12 months. इसमें आपको मेंशन किया है एंटिटी ए ने एक लोन प्रोवाइड किया है बोरोवर को एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड आउटलुक फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स सो इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज 0.25% एंड लॉस गिवन डिफॉल्ट is estimated as 25% of the balance outstanding. So we have to calculate what is expected credit loss allowance for entity A. So let us see. So case number 1. So it is given that entity A has provided so loan to borrower. So it means this one is appearing as a loan asset, which is also called financial asset. In the books of entity A, amount of this asset is rupees 10 lakhs. And then it is estimated that probability of default, this is given. Probability of default means how much is the chance that borrower may make default. This is the probability of default. This is also shown as the POB. This is your 0.25%. And then we are also given whatever loss given default. So if there is a default, then what will be loss? Loss given default. तो जिस का कहा गया LGD रेट, उसका रेट भी आपको मेंशन किया है तो कितना लॉस आपको हो सकता है इफ़ देयर इज डिफॉल्ट जिस इज 25%. तो ये आपको मेंशन किया है. सो नाउ यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस. ये हम प्रोविजन बनाते हैं, इसका नाम है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस विच इज आल्सो कहा गया है ECL. सो इट्स फॉर्मलाइज व्हाट इज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट. देखो कितना है आपका अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट इनको कर लीजिए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड व्हाट इज अवर डिफॉल्ट रेट, लॉस गिवन डिफॉल्ट रेट. तो वही टर्म्स यूज किया है मैंने जो क्वेश्चन में आपको मेंशन की है. तो नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट है देखो आपका रुपीज 10 लैक्स और उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है आपकी 0.5% और ये लॉस होगा आपको 25%. So this will be amount of expected credit loss. So this you can calculate. So this is 10 lakhs into 0.5%. So into 25%. So answer is rupees 1250. तो इतना प्रोविजन आपको क्रिएट करना है अगेंस्ट दिस फाइनेंशियल एसेट बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. So next we have case number second. So we are given that bank A originates 2000 bullet loans with a total gross carrying amount of rupees 5 lakh. Bank A segments its portfolio into borrower groups X and Y on the basis of shared credit risk characteristics at initial recognition. Group X comprises 1000 loans with a gross carrying amount per client of rupees 200 and group Y comprises 1000 loans with a gross carrying amount per client of rupees 300. So we have to calculate the amount of credit loss, expected credit loss to the bank, and it is given that for group X and Y historical per annum average default है आपका by number of our accounts 4 and 2 and the loss rate is given to be our 75%. So we have to determine the amount of expected credit loss to the bank. तो देखते हैं इसको आपको कैलकुलेट करना है
व्हाट इज एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस टू बैंक। तो बैंक ने लोन्स प्रोवाइड कर रखे हैं और उसके दो ग्रुप्स हैं कस्टमर्स के। तो लेट अस राइट हियर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है एक्स एंड वाई। और कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो आपको मेंशन किए हैं, नंबर ऑफ पर्सन है इन ये ग्रुप जिसे 1000। और उनका एवरेज अमाउंट भी आपको मेंशन किया है, व्हाट इज देयर एवरेज अमाउंट मीन्स पर पर्सन। तो ये आपका है रुपीज़ में, तो जिसे ये 200 एंड 300, उससे आपका टोटल ग्रोस अमाउंट आ जाएगा। ग्रोस अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट अमाउंट्स आपके चल रहे हैं रुपीज़ में। तो दिस विल बी रुपीज़ 2 lakhs एंड दिस इज 3 lakh। फिर आपको मेंशन किया है कि कितने पर्सनस हैं हु कैन मेक डिफ़ॉल्ट। हिस्टोरिक पर एनम एवरेज डिफ़ॉल्ट्स हैं ग्रुप एक्स में 4। तो नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट्स उसके आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट, जिसको हम शो करके रखे हैं POD। तो आपको 1000 इसमें नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट्स हैं आपके 4। तो दिस विल बी 4 डिवाइडेड बाय 1000, दिस इज 0.4%, यानी कि 2 बाई 1000, जिसे कि 0.2%। इनको 100 भी कर दिया मैंने, तो ये 0.4%, 0.2% मीन्स 0.004, 0.002, यानी कि गिवन लॉस रेट इज गिवन 75%। फॉर ईच ग्रुप लॉस का जो रेट है आपका जिसे कि 75%। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस टू बैंक फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। तो ग्रुप एक्स में देख लिया आप, अमाउंट है आपका रुपीज़ 2 lakhs, इनको कर लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट 0.4% इनटू 75%। तो इतना प्रोबेबिलिटी है आपकी डिफ़ॉल्ट की, और उसमें कितना लॉस आपने प्रोवाइड करना है 75%। तो जिस ये कमिंग रुपीज़ 2 lakhs इनको 0.4% इनटू 75%, जिस कमिंग रुपीज़ 600। सिमिलरली फॉर ग्रुप वाई अमाउंट इज 3 lakhs, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट 0.2%, और लॉस का अलाउंस आपका सेम है 75%, जिसे 3 lakhs इंटू 0.2% इंटू 75%, 450। So it means a bank has to provide expected credit loss of rupees, so this amount is coming 1050। ये आपको अमाउंट क्रिएट करना है एज अ प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ दिस लोन एसेट इन दी बुक्स ऑफ बैंक। So now you can see which option is correct. So in this case, answer is option number A. So next we have case number 3. So in this data given is company M, a manufacturer, has a portfolio of trade receivables of ₹30,000 in current financial year and operates only in one geographic region. The customer base consists of a large number of small clients and the trade receivables so do not have a significant financing component in accordance with Ind-AS 115. And it is given that the loss allowance for such a trade receivable is always measured at an amount equal to lifetime expected credit losses and the following is information of debtors outstanding। तो आपके जो रिसीवेबल्स हैं उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिया है फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। करंट आउटस्टैंडिंग है आपके जिसे जो अवर 15,000, then 1 to 30 days past due, 31 to 60 days past due, this is 7,500, 4,000, 61 to 90 days past due, 2,500, more than 90 days past due is 1,000। So company I'm using following default rates for making provision। तो default rate आपको mention किए हैं, करंट है डिफ़ॉल्ट रेट 0.3%, 1 to 30 डेज पास्ट ड्यू का है 1.6%, 31 to 60 डेज पास्ट ड्यू 3.6%, 61 to 90 डेज पास्ट ड्यू इज 6.6% एंड मोर देन 90 डेज पास्ट ड्यू इज 10.6%। तो ये आपके डिफ़ॉल्ट रेट्स भी मेंशन किए हैं फॉर डिफरेंट एज ऑफ अवर डेटर्स हु आर रिसीवेबल्स। सो वी हैव टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ रिसीवेबल फॉर द कंपनी। तो लेके सी तो आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फॉर द कंपनी एंड दिस इज फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। तो जो आपको मेंशन किया है आपके जो रिसीवेबल्स हैं तो उनका जो है कितना टाइम पीरियड है, तो किसी आंसू कहा जाएगा एज ऑफ रिसीवेबल्स, फिर उसका अमाउंट भी आपको मेंशन किए हैं। एज है जो करंट रिसीवेबल्स हैं, फिर हैं आपके 1 to 30 के पास्ट ड्यू,
तो एज आपकी काउंट हो रही है डेज में, कितने टाइम से आपका रिसीवेबल ड्यू है। देन इट इज गिवन 31 to 60 days past due। Then it is given again 61 to 90 days past due, and then it is more than 90 days, so greater than 90 days past due। इनके जो अमाउंट्स भी आपको मेंशन किए हैं, अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स इन रुपीज पे। सो करंट जो रिसीवेबल्स हैं किसी के ऊपर 15,000 यानी 7,500, एंड देन इट इज गिवन 4,000 यानी कि 2,500 एंड 1,000। ये आपके रिसीवेबल्स के अमाउंट्स हैं। लेट अस सी व्हाट इज द टोटल अमाउंट। तो किसी 22 एंड 4 26 एंड 2 28 एंड 2 टोटल अमाउंट देखिए आपका है 30,000 जो आपको मेंशन किया है। फिर आप ये है कि कितना अब आपका डिफ़ॉल्ट रेट है फॉर ईच एज ऑफ रिसीवेबल दिस इज गिवन। डिफ़ॉल्ट रेट इज गिवन, तो दिस इज गिवन टू बी अवर 0.3% and 1.6%, so again it is given 3.6%, 6.6% and finally it is 10.6%। कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट कितना है आपका एक्सपेक्टेड इनटू डिफ़ॉल्ट रेट दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। अमाउंट आपका आ जाएगा रुपीज़ में, तो दिस विल बी टोटल एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस टू द कंपनी। दिस इज 15,000 into 0.3%, 45 rupees। 7,500 into 1.6%, 120। 4,000 into 3.6%, 144। 2,500 into 6.6%, 165। So 1,000 into 10.6%, 106। Let's see total amount plus 165 plus 144 plus 120 plus 45। तो टोटल अमाउंट है रुपीज़ 580। ये आपका अमाउंट आ जाएगा ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फॉर विच प्रोविजन विल बी क्रेडिट फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ दिस रिसीवेबल विच इज फाइनेंशियल एसेट। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो हियर यू कैन सी अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। In this lecture, we discussed the topic of impairment of financial asset under Ind AS 32 and 109। फर्दर कॉपी वीडियो कॉन्टेंट नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।